A very good evening to all. Welcome to i.com India. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Myself, Afshin Sabah Khanam. I am conducting this webinar. The title is Java for Beginners by Engineer Syed Harun sir. Now, I would like to invite our eminent speakers, Syed Harun sir, for convey the lecture. Over to you, sir. Please come. Hello guys, my name is Syed Harun Naeem and today's agenda is importance of Java. According to Sun, 3 billion devices run Java. There are many devices where Java is currently used. Some of them are as follow: desktop applications such as Media Player, antiviruses applications such as irctc.co.in, icicibank.com, etc. Banking applications, mobile, smart card, games, etc. So we move ahead. Next slide. यहाँ कुछ आउटलाइंस हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा आज की वेबिनार में. व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, टाइप्स ऑफ जावा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जावा, व्हाई शुड वी लर्न जावा, latest industry trends, why choose i.com India, qualifications, interview preparations, IDs, database, career options in Java, also other perks. So we move ahead. First slide is what is Java. Java is a programming language or Java is an object-oriented internet programming language. सिंपल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर थोड़ा सा इन डेप्थ में मैं इसकी बात करूं तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब जैसे कि मैंने दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इंटरनेट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज ओरिएंटेड एंड थर्ड वन इज इंटरनेट. दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा. ये जावा के फीचर्स हैं. इन फीचर्स को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हुए चलेंगे. द नेक्स्ट स्लाइड इज हिस्ट्री ऑफ जावा. सो Java history is interesting to know. Java team members initiated a revolutionary task to develop a language named Java. James Gosling and team developed Java in 1991. Firstly, it was called Green Talk. After that, it was called Oak. Why Oak? Oak is a symbol of strength.
and in national trees of many countries like USA, France, Germany and Romania. So अगर मैं इसमें आपको बताऊं, जेम्स गोसलिंग नाम को जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने जावा को डेवलप किया था 1991 में। जेम्स गोसलिंग नाम के एक डेवलपर थे जिन्होंने 1991 में सबसे पहले इसको डेवलप किया था। और फर्स्टली इसको ग्रीन टॉक कहा गया, जो हमारी जावा लैंग्वेज है इसको ग्रीन टॉक कहा गया। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक। ओक ही क्यों सर? तो ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और ये नेशनल ट्री था काफी सारी कंट्रीज का, लाइक फ्रांस, यूएसए, जर्मनी एंड रोमानिया, इसलिए इसको ओक कहा गया। जावा टीम मेंबर्स आल्सो नोन एज ग्रीन टीम। In 1995, Time magazine called Java one of the best 10 products of 1995. Why choose Java name for Java language? The team gathered to choose a new name. The suggested words were dynamic, revolutionary, silk, jolt, and DNA. Java was one of the top choices along with silk since Java, because it's a unique. Most of the team members preferred Java. Why Java's symbol is a coffee cup? Java is an island of Indonesia where first coffee was produced, called Java coffee. तो जावा टीम मेंबर को ग्रीन टीम भी कहा जाता है। और 1995 में टाइम मैगजीन ने जावा को डिक्लेयर किया था 10 बेस्ट प्रोडक्ट। जावा लैंग्वेज का नाम जावा क्यों पड़ा? इसके लिए जेम्स गोसलिंग और टीम ने काफी सारे वर्ड पर डिस्कशन किया, जिसमें डायनामिक, revolutionary, silk, jolt and DNA. So most of the team member preferred Java, इसलिए इसको जावा कहा गया। और इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, वहां पर फर्स्ट कॉफी जो प्रोड्यूस हुई थी उसको जावा कॉफी कहा गया था, इसलिए इसको जावा कॉफी। जो आप सिंबल देखते हैं ना, ये सिंबल मैंने एक लगा रखा है हिस्ट्री ऑफ जावा में। जावा के ऊपर एक कप है कॉफी का। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये सिंबल ही क्यों लगाते हैं जावा में? तो आपको बताना चाहिए कि इंडोनेशिया में एक आइसलैंड था, वहां जो फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूस हुई थी वो जावा कॉफी के नाम से, इसलिए जावा के साथ हमेशा इस सिंबल को यूज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ जावा। So there are mentioned some features of Java. First one is object oriented, simple, secured, platform independent, robust, portable, architecture neutral, dynamic, interpreted, high performance, multi-threaded, distributed. These all the features of Java. So we discuss about one by one. Firstly, we discussed about object oriented. Object oriented means we organize our software as a combination of different type of object. And other one is platform independent. Java code can be run on multiple platforms like Windows, Linux. That is, write once and run anywhere. It's called VORA. W stand for write, O stand for once, and R stand for run, and A stand for anywhere. So we call Java platform independent because Java code write once and run anywhere. Other feature is robust, means strong. Java uses strong memory management. So we called Java as a strong in the sense of memory management. Java is a simple because Java removed many confusing features like explicit pointers, operator overloading. Other one, dynamic. We create dynamic and responsive website and application with the help of Java. Secure. Java is a secure because there is a security manager. High performance. Java is a faster in comparison with other traditional language. And it's a distributed language also because banking application mostly use Java in our softwares.
सो अगर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताऊं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज अवर सॉफ्टवेयर से कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम जावा को इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि आपने अपना एक कोड रन किया विंडोज पर और आप चाहते हैं कि सेम कोड हमारा लाइनक्स विंडो पर भी रन हो, तो जावा ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर अपने कोड को लिख के अदर प्लेटफॉर्म पे आप इजीली रन कर सकते हैं। इसलिए हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। जावा के पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। सिंपल इन द सेंस क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग फीचर्स जो थे, एक लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस। अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं सी प्लस प्लस का, तो एक लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस जिसमें हम एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। तो कुछ ये कंफ्यूजिंग से जो टर्म है, कंफ्यूजिंग जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स जावा रिमूव कर देती है, इसलिए हम इसको सिंपल लैंग्वेज भी कहते हैं। एक फीचर है डायनामिक। वी क्रिएट डायनामिक एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वह रेस्पॉन्सिव क्या होता है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या एप्लीकेशन उस वेबसाइट और एप्लीकेशन को कहते हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट को सेम मोबाइल पर भी चला सकें और सेम आउटपुट के साथ आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी चला सकें। उस तरह की वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। इसके पास एक सिक्योरिटी मैनेजर होता है, तो जावा मोस्टली सिक्योर होती है, इसीलिए इसको मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में भी यूज किया जाता है। सो अवर नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशन। इन दिस स्लाइड we discuss about types of Java application. So there are mentioned 3 types of Java. First one is Java SE, second one is Java EE, and third one is Java ME. Java SE stand for Java Standard Edition, simply known as Core Java. Java EE stand for Java Enterprise Edition, simply known as Advanced Java. Java ME stand for Java Micro Edition, simply known as Mobile Java. तो जावा के 3 टाइप्स हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन और जावा माइक्रो एडिशन, जो कि बहुत मोस्ट फेमसली आप बोल देते हैं कोर जावा, बट इन द टेक्निकल सेंस आपको कहना चाहिए जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसी तरह से जावा एडवांस जावा, इसको टेक्निकल टर्म में आपको कहना चाहिए जावा एंटरप्राइज एडिशन। और थर्ड वन इज जावा एमई, जिसको आप कॉमनली यूज करते हैं मोबाइल जावा, उसको आपको कहना चाहिए माइक्रो एडिशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ जावा। जावा प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्री। जावा लर्न करने के बाद, जावा सीख जाते हैं जब आप, तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं एक इंडस्ट्री में, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जावा प्रोवाइड अ पाथवे हाउ टू स्टेबल इन ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जावा आपको एक पाथवे देगा, आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने आप को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आफ्टर यू लर्न जावा, यू गॉट योर ओन आइडेंटिटी एंड नोन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और जावा डेवलपर। जब आप जावा लर्न कर लेते हैं तो आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, आप फिर या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाते हैं या आप एक जावा डेवलपर कहलाते हैं। तो जावा सीखने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू क्रिएट योर ओन डायनामिक एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी खुद की एक डायनामिक और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी समझ में अगर आप जावा कर लेते हैं तो एक तो आपको अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आपको एक जावा पाथवे दे देती है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं या आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टेबल होना चाहते हैं, तो जावा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज टू स्टेबल in a software industry. How to stable in a software industry? If you learn Java,
to you stable software industry easily. And after you learn Java, you got your own identity. You called as a software developer or Java developer. And after the completion of course, you create your own dynamic and responsive websites. You become a Java developer or software developer after the learn Java. Now we discuss about run Java program, how to run our first Java program. So in this screen, there is our first Java program. ये कुछ टेक्निकल टर्म है, अगर आप बिल्कुल न्यू है या बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएंगे या थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, पर अगर आप थोड़ी बहुत जावा जानते हैं तो आप इन टर्म को समझ पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारी जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास लिखी हुई है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। देयर पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास इज अ कीवर्ड and hello world is class name, and we start our class for this bracket. Then public static void main string args, this is our main method. Our program execution start with the main method, and main method start with this bracket, and last one is system.out.println. System.out.println used for print any type of string or any type of object. If we want to print, then use system.out.println. There we are print hello world only. So this is Java's first program. Why should we learn Java? Because there is a high salary, is a in-demand language, easy to learn. Topmost MNC companies work on Java like Tech Mahindra, HCL, Wipro, Infosys, and also other one. It's a evergreen language, secure language. Banking sector use Java because it is secure. आपको जावा ही क्यों सीखनी चाहिए? इसमें हाई सैलरी है। या तो आप किसी एमएनसी कंपनी में स्टार्ट करते हैं तब भी आपकी सैलरी अच्छी होती है, या आप किसी स्टार्टअप कंपनी से भी स्टार्ट करते हैं तब भी आपकी सैलरी इसमें हाई सैलरी होती है। देन इन डिमांड लैंग्वेज, ये इन डिमांड लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप डिस्कस किया, ये इजी टू लर्न है। एक्सप्लिसिट, पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये इसमें जो कंफ्यूजिंग फीचर्स थे वो ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं। और जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हैं वो सारी वर्क करती हैं मेनली जावा में, जैसे कि HCL, विप्रो, इन्फोसिस। एवरग्रीन लैंग्वेज है, जैसा कि कुछ टाइम पहले PHP का बूम चल रहा था, देन .NET का बूम था, आजकल पाइथन का बूम चल रहा है, बट जावा इज एवरग्रीन लैंग्वेज एंड इट्स अ सिक्योर। Banking sector uses Java because it's secure, because there is a security manager. We already discussed about security manager. Now we will discuss about latest industry trends. Java 18 is here. Java 18 is not released till now, but it's coming soon. Latest version of Java, Java 17. Its release date is September 2021. सितंबर 2021 को जावा 17, जो कि जावा का लेटेस्ट वर्जन है, रिलीज हो चुका है, और जावा 18 कमिंग सून है। अदर टर्म जो इस टाइम लेटेस्ट इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उनके बारे में मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। जो टर्म यूज होते हैं उसमें डेवऑप्स, AWS, माइक्रो सर्विसेज, जावा 8, मेवन, डॉकर, पोस्टमैन, इंसोमेनिया। अदर वन इज हीरोकू, पोजो, JPA, Git, GitHub, Stack Overflow. These are the latest industry trends in Java. Why choose i.com India for training? i.com India is a rapidly growing web development platform. i.com India itself provide opportunity to our intern or trainee. i.com India's trainee also got a good opportunity in other MNC and startup software companies. And i.com India also provide a training certificate also. So आपको i.com India से ही ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए जावा की? ये ऑलरेडी एक
रैपिडली ग्रोइंग वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, और ये अपने जो इंटर्न और ट्रेनी है, यहाँ से जो ट्रेनिंग करते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, उनको इटसेल्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अदर एमएनसी और स्टार्टअप कंपनीज में भी ग्रो कर सकते हैं। और आई.com इंडिया आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाती है आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन। So we will discuss about qualifications. No need any specialized degree for certification of Java. No need to learn C और C++. ये भी एक मिथ है कि हमें जावा सीखने के लिए C और C++ आना जरूरी है। तो आपको ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको C और C++ सीखना ही है। If you have a knowledge of C++, so it's good, but not essential. अगर आपको नॉलेज है C++ की तो ये गुड है आपके लिए। और बिकॉज सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन C++, जावा का सिंटैक्स C++ बेस्ड है, तो आप अगर C++ की नॉलेज रखते हैं तो इट्स अ बेटर फॉर यू, बट इज नॉट एसेंशियल, राइट? So I.com India also provide interview preparation. I.com India provide a pathway how to crack any MNC's company's interview. I.com India provide a weekly and monthly coding challenges, preparation of competitive coding. विज्ञान कैमरा ऑफ कर, विज्ञान कैमरा ऑफ कर। So we discuss about why choose I.com for I.com India. So विज्ञान I.com India provide a mock test series, weekly interview preparation, provide help in resume writing also. Now we discuss about IDEs. IDE stand for Integrated Development Environment. IDE stand for Integrated Development Environment. IDE is a software application that provides a platform to programmer for Java development. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं तो IDE आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पर आप अपने जावा के कोड को रन कर सकते हैं। IDE आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जहां आप अपने जावा को कोड को इजीली रन कर सकते हैं। इन जावा वी मेनली यूज दीज IDEs, Eclipse, IntelliJ, NetBeans। इंडस्ट्री में जो मोस्टली यूज होता है Eclipse और IntelliJ, इसलिए मैंने यहाँ पर Eclipse को मेंशन किया हुआ है। अब जावा में हम कुछ डेटाबेसेस भी यूज करते हैं, Oracle, SQL, MongoDB, तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। Oracle is itself a database and Oracle is a company also, like same MySQL is a database and MySQL is a company also. JDBC stand for Java Database Connectivity, DBMS stand for Database Management System। जब भी हम अपने जावा कोड को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने जावा कोड को हम कनेक्ट करना चाहते हैं डेटाबेस से, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें जितने भी लोग लॉगिन करें वो एक सॉफ्टवेयर पर जाकर सेव हो जाए, उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस बोलते हैं, जहां पर सारा कुछ स्टोर रहेगा जो भी लोग लॉगिन करेंगे, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है। तो इसलिए जावा में हम डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने डेटाबेसेस को स्टोर करना होता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट, जब हम जावा पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। मेनली जावा में जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो 6 होते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। यहाँ मैंने ओनली 4 को मेंशन किया हुआ है: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। oops concept is the most important term in Java. Without oops concept you not properly learn Java, right? So oops concept is main for Java learning. Career options in Java: software engineer, software developer, programmers, coders, full stack Java developer, software tester, software trainer, and Android developer. These are the career options. Software engineer is different to software developer, and software developers have some differences in programmers or coders, and full stack Java developer also has differences: software tester, software trainer and Android developer. अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ग्रो करना चाहते हैं
तो आपको 2 लैंग्वेज और आना चाहिए, या तो कोटलिन या फिर कोर जावा। अगर आप कोटलिन सीख लेते हैं उसके बाद आप एंड्रॉयड में डेवलपमेंट कर सकते हैं इजीली, बट कोटलिन का और कहीं यूज नहीं होगा लाइफ में, केवल आपकी कोटलिन काम आएगी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। बट अगर आप कोर जावा करते हैं तो आपके लिए एक करियर ऑप्शन यहाँ भी खुलता है, आप ऐसा चाहो तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ग्रो कर सकते हैं, या कोर जावा के बाद आप एंड्रॉयड के अलावा एडवांस जावा सीख लेते हैं, तो फिर आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, कोडर, टेस्टर, ट्रेनर, ये भी आपके लिए एक करियर पाथ ओपन हो जाते हैं। अगर आप i.com इंडिया से ही जावा ट्रेनिंग लेते हैं तो अदर पर्क्स क्या रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप एडिशनली प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। इसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू दिया जाएगा। तो दिस इज फॉर माय साइड। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? If you have any questions, please ask me. हेलो सर। Yes, please. Your voice is audible. Please ask. सर वो एथिकल हैकिंग के फील्ड में कोई उसका यूज नहीं है सर, जावा लैंग्वेज का? आपकी वॉइस मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है। जावा लैंग्वेज का यूज सर एथिकल हैकिंग लाइन में नहीं है? एथिकल हैकिंग में आप जानना चाहते हैं जावा का यूज है या नहीं? देखिए, Yes, जावा sir. एक आपकी बैकएंड की लैंग्वेज होती है, और अगर आप एथिकल हैकिंग में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके लिए भी आप जब एक आपको स्टार्टअप लैंग्वेज चूज करनी होगी, या तो आप PHP से करें डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि आप एथिकल हैकिंग में ग्रो करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करने के लिए कोई भी ऐसी लैंग्वेज आपको सीखनी ही होगी जिससे कि आप लॉजिक डेवलप कर पाए। तो वो फिर आपको चूज करना होता है PHP, जावा और .NET, पाइथन या C++, किस में आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज सीखने के बाद ही आप अदर कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि आपका डेटा साइंस हो गया, ये ऑलरेडी पाइथन का पार्ट है, या एथिकल हैकिंग हो गया, तो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो जावा सीखने के बाद आप बिल्कुल एथिकल हैकिंग में ग्रो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और एनीवन, एनी क्वेश्चन? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर फ्रेशर्स को जॉब मिल जाती है सर? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जावा में फ्रेशर्स को जॉब मिल जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जावा में फ्रेशर को बिल्कुल जॉब मिल जाती है। थोड़ा सा क्या होता है, इसमें 2 चीजें हैं। जावा में आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कमांड बहुत अच्छी है तो बिल्कुल फ्रेशर को जॉब मिलती है, और अगर एज अ फ्रेशर भी आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं जावा की, अगर आप सिंपल एक स्टार्टअप कंपनी में भी जाते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज प्रोवाइड होता है। अगर आप जावा लैंग्वेज से जाते हैं तो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, और अगर आप MNC में जाते हैं तब भी आपको मिलेगा, और स्टार्टअप हैंड क्लोज कर दो। Okay. For any other queries, you go to i.com India website. Okay, thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.